Okay, Deepakanji, now we will do Pad. Okay. Shital Ben. Deepakanji? Jai Sachidanand. Wait, wait, Deepakanji, we lost him. Okay, go ahead, Shital Ben. Okay. केवल प्रेमणि जीवति मूर्ति ज्ञानी पुरुषनि करुणाने समता भांगेला हमने था बड़ी वाल थी मन थी भांगेलाने सजीवन करता केवल प्रेमनि जीवती मूर्ति सादी शैली मां परमार्थी वाणी आत्मार्थ लक्ष्ये देशनाते विचरता जग उपकाराय गुरु छताए शिष्य जम रहता केवल प्रेमनि जीवती मूर्ति आत्माने स्पर्शिली चैतन्यवाणी ओगाडे आवरण प्राकृत पडळ लौकिक भाषाथी तद्दन जुदी एकेका शब्दों अद्भुत वचन पड़ केवल प्रेमनि जीवती मूर्ति कड़ियुगमा घेरे बैठा तप छे वर वहुना मनमा भेदी कुसंग छे माँ बापो सामे દીકરાનું રણયુદ્ધ જેનાથી છૂટવાનું ત્યાં જ પડે ગૂંચ કેવળ પ્રેમની જીવતી મૂર્તિ कत भाव ही साबे भमरड़ा फरता ही साबो घुचवीने बेवड़ाऊ छड़ता भ्रांति मारमता भेदज बुद्धिना परमाणु रसने माने पोताना केवल प्रेमनि जीवती मूर्ति कोईનું અવળું યા દોષ ન દેખે ભરેલો માલ જ નીકળે છે કહેતા
તો એ ખપે જ્યાં વેવારું સૂચન દ્રષ્ટિથી ભ્રાંતિ ઓગાળી દેતા કેવળ પ્રેમની જીવતી મૂર્તિ જેનામાં જે શક્તિ ખૂટતી લાગી વિધિમાં પરમાણુ છાંટી જ દેતા ખોખાના સ્પંદનો ભસમ થાશે આમ જ મૂંગી આશીષો દેતા કેવળ પ્રેમની જીવતી મૂર્તિ ખોખાના દોષો જોશો જો કોઈના તેથી તો સામાના પગડે છે મોઢા ખોખું તો સહુનું બળવાનું એક દી માટે જ કેવળ આત્માને જોતા કેવળ પ્રેમની જીવતી મૂર્તિ મન બુદ્ધિ ચિત્તને અહમ જ્ઞેયો જોઈ જાણે છે તે જ જ્ઞાનાત્મા કાયાનું થિયેટરને મનની ફિલ્મોના પ્રેક્ષક નિરીક્ષક અક્રમ મહાત્મા કેવળ પ્રેમની જીવતી મૂર્તિ અંતઃકરણના રૂપલાગ્નેયો મૂઢ દશામાં જોયા જ નહોતા પરમાણુ માત્ર પારકી થાપણ રૂપી પરપોટે સ્વરૂપી નોખા કેવળ પ્રેમની જીવતી મૂર્તિ પોતાના પૈસાને સમય ખર્ચી સત્સંગ દેવા જાતા દાદાજી આપણી ભૂલોની માંગી લે માફી ઓહો જો સમતા પરમાત્માની આપણી ભૂલોની માંગી લે માફી ઓહો જો સમતા પરમાત્માની કેવળ પ્રેમની જીવતી મૂર્તિ જ્ઞાની પુરુષની કરુણાને સમતા કેવળ પ્રેમની જીવતી મૂર્તિ જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ કેવી રીતે આ પદ સિલેક્ટ કર્યું
રાઈટ હિન્દીમાં છે actually હવે આજનો સત્સંગ. If you can speak in Hindi, it will be better. Otherwise, no problem. Continue in Hindi, Gujarati. ઓકે હા એટલે સમજણ પડશે બોલવામાં તકલીફ છે એટલું જ ના એટલે I love this પદ I mean પહેલી વાર જ્યારે મેં સાંભળ્યું હતું પહેલી લાઈન થી છેલ્લી લાઈન સુધી just tears કવિરાજે જે રીતના ગાયું છે એમણે દાદા ભગવાનનું જે વર્ણન કર્યું છે દાદા ભગવાન જે રીતે એમનું આખું જીવન જીવ્યા એમનો બહારનો વ્યવહાર એમની અંદરની દ્રષ્ટિ it just I don't have words અને every time I hear this pad I different line makes me tear up. Even today I wasn't sure I'd be able to go through it but I did and you know I feel every line of this pad you can do a satsang on but Shailesh Anandji I will ask the last line apni bhuloni maafi le magi maafi aho ho jo samata paramatmani please I mean I understand it but I don't think I really understand. I just feel this is I can't say impossible but he lived like that but how is this what is this बात करूं दीपक आनंद जी Yes, તમારે કરવાનું, right? सो शीतल जी आपकी बात बिल्कुल सही है. व्यवहार में हम देखते हैं और ये बात करने से पहले मैं एक सही बना हुआ प्रसंग बोल रहा हूँ. दादाजी के देह विलय के 3-4 दिन पहले की ही बात है. जो लोग दादाजी की नजदीक की सेवा में रहते थे रात को भी साथ में रहते थे 2-3 तो दादाजी बात करते थे उनसे कि भाई आपको ये बात समझ में आई तो एक उन्होंने बोला कि नहीं दादाजी मुझे कुछ समझ में नहीं आया या तो ठीक नहीं लगा या तो जो भी बोला हूँ. तो दादाजी बोले हाँ तो मेरी कुछ गलती हुई लगती है. ऐसा करके उन्होंने वो एकदम से प्रेम से ले लिया. तो होता क्या है कि अपनी गलती होती है मगर कोई भी कारण से या तो अपने को दिखती नहीं है अपना अहंकार होता है कुछ अपनी मान्यता होती है तो कई बार हमें खुद को अपनी गलती या तो एहसास नहीं होती या तो हम स्वीकार नहीं कर सकते या तो और अभी दोनों आमने सामने यदि दादाजी है ऐसा बोलेंगे कि आपकी गलती है और हमारी मशीनरी नहीं है तो वो व्यवहार में एक क्लेश कषाय युक्त वातावरण खड़ा होता जाएगा और कभी भी हमारा अहंकार वो स्वीकार नहीं करेगा कि हाँ हमारी गलती है. वो रिबाउंड करेगा रिटेलिएट करेगा और हम व्यवहार में देख ही रहे हैं. तो दादाजी तो क्या है कि भाई वो तो प्रेम और करुणा के सागर उनके दिल में जो दशा ही अलग है तो वो खुद माफी मांग के कि भाई नहीं हाँ लगता है हमारी कुछ समझ में गलती हुई किया तो तुरंत ही वातावरण भी शांत प्रेम वो सब और उसका जो प्रभाव सामने वाले पर पड़ता है तो उसको एहसास होता है कि नहीं गलती तो मेरी है. सो ये एक चीज ऐसी थी और दादाजी कोई भी जगह पे कहीं भी रुके नहीं. एक और बात दादाजी ने एक जगह पे कही थी कि मान लो अभी कोई पूछे कि कितने बजे है बोलेंगे रात के 9:30 बजे है तो फिर शीतल जी तो बोलेंगे कि नहीं दादाजी सुबह के 9:30 बजे आपको तो पता ही नहीं है क्योंकि तो वहां तो सुबह के 9:30 बजे है. तो दादाजी बोलते थे ऐसे धीरे से हाँ लगता है कि मेरी कुछ घड़ी देखने में गलती हुई. तो उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं कि दूसरे को अहंकार को जीता के खुद बाजी हार के दादाजी प्रेम से उन्होंने जगत जीता. कहीं पर भी जीत के जगत को जीत नहीं सकते हैं हार के ही जगत को जीत. हारना मैंने दूसरों की गलती को गलती न बोल के उनके अहंकार को न छेड़ते हुए खुद के अहंकार को इतना उनका तो अहंकार ही नहीं था उनको तो होता ही नहीं था कि मेरी गलती. सो कई और दूसरे का हित भी उसमें है खुद का भी हित है. सो इस प्रकार से दादा भगवान पूरे जीवन के दौरान ये जीवन जिए. और एक और भी आगे की बात है
ये बात तो स्थूल रूप से भी देखी गई है कि गांधी जी और उनके पौत्र, तो किसी ने, उनके पुत्र ने नहीं माना तो उन्होंने सोचा कि ये तो मेरे चारित्र की कमी है, गलती तो कहीं मेरे में है, तो उन्होंने खुद को शिक्षा दी। क्या दिया? तो ये अपेक्षा से भी देखो, मगर दादाजी का तो पूरा अस्तित्व ही अलग था, तो हमारे हमारे से वो अभेद रूप से थे। तो आप सोचिए कि प्रेम, करुणा और अहंकार, कितनी अहम शून्यता होगी, तब जाके ये काम हो सकता है। हम तो समझते हैं तो भी कोई बार हमारा डिस्चार्ज अहंकार हमें करने नहीं देता है। क्या करने देता है? हाँ तो ये बहुत सारे पहलू है उसमें, पर आपने बहुत सही ढंग से उसको अनुभव किया, एहसास किया, समझे। सो इट्स ग्रेट। Jai Sachidanand. yes. Okay, Shetalman. हाँ yes okay. Jai Sachidanand. ललिता जी का हाथ खड़ा है। Dr. Lalita Ben. Dr. Lalita Ben. Yes, Jai Sachidanand. जय सच्चिदानंद। I just want to throw a little history to this song. Sheetal ji, that was a beautiful song, my all-time favorite, and Dr. Radhi's favorite song. So thank you for singing this. But we talked to Kavi, and he told us under what circumstances he composed this. You know, he said they had gone on a yatra somewhere to Nepal, and a whole bunch of Mahatmas and Dada. And he said, you know, Kavi's Buddhi was looking for where I can take a shower, you know, and he made arrangements to go to town and took a shower. And he said, we were also wrapped up in our own needs and necessities. Nobody asked Dada, do you have a room and do you have bathing facilities? And he said, like 5:30 in the morning, they heard a voice from under a tree calling out the Navkar mantras, you know, the 3 mantras. And they all scrambled to go there. And it was Dada. He was up at 5:30 and he was just love incarnate, because he said, do you think you guys would get away with this with a Laukik guru? And they all touched their ears and asked for maafi from Dada, but that is the love incarnate that he was, you know. He never held them to any standards. So I just wanted to bring this up. This is such a beautiful song. I just wanted to give you some Jai Sachidanand, very background to good. this song. Did you know this, Deepak Anandji? Did you know the circumstances in which he composed this? दीपक I did आनंद जी, not. I didn't knew that. You didn't know that? Well, No. Kavi himself told me this. I mean, told me and Radhe, Yeah. he was just so moved to bring out a pad. Right. That was it. Jai Sachidanand. जय सच्चिदानंद। Can we move ahead? Yeah, I'm done. Jai Sachidanand. जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी, Jai Sachidanand. yeah, I think his connection is bad. yeah, connection is Okay, good. Ami Ben. Ami Ben. जय सच्चिदानंद शैलेश जी। हाँ, जय रजनी सच्चिदानंद। अंकल, आपको ये पद क्वेश्चन क्या पद के बारे में? पद के बारे में। ओह वेरी गुड, ओके बोलिए। शैलेश जी, ये जो पद था ना, उसमें वो 4 लाइन बहुत अच्छी लगी। वो अंतस्करण को कभी भी ज्ञेय के रूप में नहीं देखा था, और वो
ये थोड़ा इस पे और प्रकाश डालिए। मूढ़ दशा में कभी इसको देखा नहीं था और ये परमाणु मात्र पारकी है, ये इस पे थोड़ा प्रकाश दीजिए। जी, तो पहले तो मूढ़ दशा मैंने मैं शैलेश हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो ये तो मालूम ही नहीं था कि ये अंतस्करण भिन्न है और मैं भिन्न हूँ, मैं ही हूँ, ऐसा ही था। ये मन, वाणी और काया तीनों में मैं ही हूँ, ऐसा ही था। सो उसको ज्ञेय ज्ञाता दृष्टि नहीं थी, दृश्य दृष्टा दृष्टि ही नहीं खुली हुई थी, तो वो मूढ़ दशा थी। सो उसको देखने की, मैंने तटस्थ भाव से ज्ञेय या दृश्य के रूप में देखने की तो बात ही नहीं थी, क्योंकि समझ ही नहीं थी। जब ये दृष्टि खुली कि भाई मन वचन काया भिन्न, ऐसा मैं शुद्धात्मा हूँ, और अभी मन वाणी काया, ये मैंने फाइल 1 और मेरा क्या संबंध बना, तो बोले अंतस्करण वो ज्ञेय और दृश्य रूप हो गया और मैं ज्ञाता और दृष्टा हो गया। तो अभी ये जागृत दशा, जागृति में समझ प्राप्त हुई, उसके बाद से अंतरात्म स्थिति में आया, तो अभी मैं अंतस्करण के ज्ञेयों को देख पा रहा हूँ कि भाई ये ज्ञेय दृश्य है, मैं उसका ज्ञाता दृष्टा हूँ। सो ये बहुत महत्व की चीज है कि भाई ये मन वाणी काया फाइल एक है, या तो मेरे से भिन्न है, मैं उनसे भिन्न हूँ, ये वो ज्ञेय दृश्य है और मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ। वो बहुत बड़ा आध्यात्मिक विजय भी कहलाता है और मुक्ति यात्रा का महत्व का सोपान भी कहलाता है। तो अभी हमें पता चला कि परमाणु मात्र, मैंने ये मन वाणी का तीनों परमाणु हैं, पर पुद्गल हैं, वो पर हैं, पराधीन हैं और पराधीनता कराने वाले हैं। अभी तक मैं पहले ऐसा मानता था कि ये मेरा है, मगर अभी मुझे मालूम चला कि ये कुछ भी मेरा नहीं है, पर और पराधीन है, मैं इनसे भिन्न ऐसा शुद्धात्मा हूँ। और ये रूपी परपोटा मीन्स मन वाणी का या रूपी है, मूर्त स्वरूपी है। परपोटा मीन्स कब वो फूट जाए, मीन्स कब उसका वियोग हो जाएगा वो मालूम नहीं। इसमें मैं शुद्धात्मा स्वरूप से बिल्कुल भिन्न हूँ। सो ऐसी ये 3-4 लाइन में पूरे अध्यात्म का सार, पूरे आगमों का सार, पूरा जो भी गिनो ब्रह्मांड के ज्ञान का सार एकदम सरल स्वरूप से, दृष्टि के रूप से हमें मिल गया है। हमारी यात्रा है, हमारा पुरुषार्थ है, और हमें वो लेवल पर पुरुषार्थ करते रहना है। और जिनको अंतस्करण को देखना जानना आ गया, उससे भिन्न रहना जिसको आ गया जागृत पुरुषार्थ से, उसको दुनिया की कोई भी चीज असर भी नहीं करेगी। वो अंदर से मुक्ति का एहसास भी, अनुभव भी करता रहेगा और उसकी प्रगति भी बहुत शीघ्र। अभी हम महात्माओं को थोड़ा रहता है, थोड़ा हम चूक जाते हैं, दोनों होता है। कई बार अंतस्करण को देख पाते हैं, कई बार उसमें थोड़ा सा सम्मिलित हो जाते हैं, तो उसके असर में भी आ जाते हैं। खास करके मन की असर में, चित्त के असर में कहीं कहीं हम आ जाते हैं, फिर जागृति आने पर वापस उससे भिन्न होके उसको देखने लगते हैं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आगे चले। कश्यप जी आप पूछ सकते हैं, दीपकानंद जी या तो रजनी भाई जब तक ज्वाइन है। हेलो, जय सच्चिदानंद। हेलो हेलो। रजनी अंकल भी नहीं आए। हाँ तो इसीलिए, हाँ एक मिनट सॉरी। नहीं नहीं, ओके, कश्यप भाई। जी जी, जय सच्चिदानंद। सबको जय सच्चिदानंद।